everyone. Very good morning. This is Dr. Sonali from Sunrise Learning, and it is my pleasure, great pleasure, to host this session today, which is basically meant to train parents, empower parents about the homeschooling program. All about homeschooling. We are beginning this new beautiful series about the homeschooling program. And today we are going to understand what homeschooling is all about. And we have Vandana Gautam ma'am, who has a very rich experience of working with her son in a homeschooling setup, which she created and individualized for her son's needs and special requirements. And she is going to talk about her homeschooling journey. And before that, she will also talk about some prerequisites, some basic details about what homeschooling is about and what we need to know if we need to choose homeschooling for our child. And after that, we will also hear from another parent who has been homeschooling her two children who are on the spectrum. And I'll introduce that mother, or Vanna ma'am will introduce that mother soon after we are done with the first part of this session, which is all about homeschooling. And I'm so glad that all of us are here together to explore one more side of schooling, another aspect of schooling. So thank you very much for being here. And over to you, Vandana ma'am. We can start the session today. Yes, thank you, Sonali ma'am. And the mother who Sonali ma'am is talking about, it's a surprise for everyone. All right. It's a surprise for everyone that we are going to listen. We are going to listen real homeschooling journeys, how it goes, how it starts, why we started this, and everything we are going to cover up. So theory part I will try to do as soon as possible, because when I start talking to it's very difficult for me to stop. So I will try myself to stop. I'll keep redirecting. No problem. Yes, yes, yes. And it's a beautiful journey. Homeschooling is a beautiful thing which we can do for our kids, and we today we will learn why and in which situations which we should do homeschooling, and what are the prerequisites, what are how we should be mentally prepared, how as a parent we should be prepared, and how can we prepare our children for the same. So I'm going to share my screen, so give me 1 minute. Let to share the screen. I need to join from another device also. Just a minute. So in the meantime, I wanted to say this to all the parents. आप में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने होम स्कूलिंग शायद शुरू किया हो और आगे नहीं गए हों, या कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कभी होम स्कूलिंग ट्राई नहीं किया हो, उनका बच्चा हमेशा से किसी ना किसी स्कूल में जाता रहा है. So in any of the scenarios, homeschooling is something that we all can try to understand. हम पहले समझने की कोशिश कर सकते हैं कि होम स्कूलिंग कब और किन सिचुएशंस में काम आ सकता है. और सीखना will be empowering ourselves. हम अपने आप को empower करेंगे कि कभी सिचुएशन आए तो हम अपने बच्चे को होम स्कूल कर सकते हैं. But having said that, I also want to say that जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं, ऐसे टाउन्स में रहते हैं जहाँ उनके बच्चे को कोई सूटेबल स्कूल ना मिल पा रहा हो, वो जरूर सीखें होम स्कूलिंग कैसे की जाती है एंड हाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू गो अबाउट इट. और कुछ बच्चे जो किसी भी इवन स्पेशल स्कूल में भी सूटेबिलिटी नहीं ढूंढ पाए हों, जिन्हें नहीं मिल पाया हो कोई सूटेबल अरेंजमेंट, वो भी जरूर सीखें होम स्कूलिंग कैसे कर सकते हैं. और आई थिंक सो इट इज as good as a social environment in a school, as long as we make sure कि हम वो जो सोशल गैप्स रह जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट के जो गैप्स रह जाते हैं, वो हम फिल अप करते जाएं. सो होम स्कूलिंग इज as wonderful as a social school environment. Both have their advantages and disadvantages. You are doing this individualized for your child. Ma'am, are you ready?
and the special school is providing to a bigger group of students. So दोनों के अपने अपने advantages और disadvantages हैं. We have to understand इस समय हमारे बच्चे को क्या जरूरत है इस समय right now, and you can always switch over to the other mode from one mode to another when the conditions suit your child. So I think ma'am is ready. We can go ahead with the session. Yes. Yes, I'm ready with my presentation, and let's start with the presentation. Okay. So today we are going to talk about homeschooling special need children. So agenda for the today's webinar is Slide is not visible. The slide is not visible. not visible. No. Okay. Why it is so? When they are saying don't share the whole screen, just share a window or a tab. Can you see it now? No. Oh, I'm so sorry. Share window. Give me 1 minute again. So it means In the meantime, please chat box में अगर अपने अपने बच्चों का नाम और age भी लिख देंगे, it will be very nice for everyone in the team to understand the age group that right now we have in the session. And if somebody has an experience of homeschooling, if you can write that also in the chat box, it will be very easy for ma'am to refer to at the end of the session. Yes, please keep writing your child's name and age. And if you have an experience of homeschooling, great, share that too. नहीं, अभी भी entire, हाँ, yes. Are you on mute? Just unmute and then start. I have opened this PPT in iPad, so slideshow can go some thoda open नीचे, but I think it is visible now. Yes. Right. So today we are going to hello everyone. My name is Vandana. Before we start, I'll brief about myself. Right now, I am an educator in Sunrise Learning, Noida, where I am teaching computer and Avaz, AAC communication to the children. My son Saksham, who is 13 years old, he goes to Sunrise Learning, and before going to Sunrise Learning, we were homeschooling for around 3.5 years, and I have a good experience. I had a good learning. I would not say experience, but I learned a lot in my homeschooling journey, and pros, cons, what are the advantages, disadvantages, what are the practical things which you will not find on any Google or any search engine, but a mother can only tell you. So we are going to talk about those things, and after that we are going to share two stories of homeschooling. One is mine, that I'm going to share how I started and how I did it and what were the challenges, and then we have a surprise parent here who will be talking about her journey about homeschooling, and after that we will introduce our program, how Sunrise Learning can help those mothers or parents who are willing to do homeschooling or due to some circumstances who have to do homeschooling but need some help. So we will be talking about that. So agenda, I have already mentioned that we are going to talk about what is homeschooling,
why people homeschool, why we need to homeschool special needs children, then pros and cons of homeschooling, why we should go for a parent-led approach, and myths about homeschooling. What are the myths about homeschooling? What exactly homeschooling is? Then there is a lot of confusion among parents about homeschooling and open schooling. So hopefully I will be able to clear that today. And getting ready for homeschooling, what are all the things which we need to be considered before going for homeschooling? Then I will talk about that how what are the backbones for a successful homeschooling, and then we are going to share the stories, and after that we will introduce the Sunrise Learning program for homeschooling. So to start with, what is homeschooling? You must all be aware, आप सबको पता ही होगा what is homeschooling. Homeschooling is education of children at home either by the parents or by the tutors. So homeschooling का मतलब होता है घर पर बच्चे को एजुकेशन देना. ये एजुकेशन आप पेरेंट्स भी दे सकते हैं और आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं जो आपके घर पर आएगा और आपके बच्चे को एजुकेशन में हेल्प करेगा. So this is a definition of homeschooling. It is an alternate way of schooling which is different from the traditional approach. आज तक हमने सुना है होम स्कूलिंग के बारे में, दैट इज अबाउट गोइंग टू स्कूल. चाइल्ड स्कूलिंग होती है, उसमें बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है और हम होमवर्क कराते हैं. ये इतना ही हमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे भी होम स्कूलिंग से पहले इतना ही पता था कि what schooling means. And there can be alternate of schooling also. Learning can happen at home also, and that is called homeschooling. It is an alternate way of traditional learning. And this is a decision which is a conscious decision made by the parents, that they why they want to homeschool, how they are going to homeschool. It is totally a parent's decision. Nobody can force you to do homeschooling. This has to be your own decision. कोई आपको बोल नहीं सकता नहीं नहीं तुम अपने बच्चे को स्कूल मत भेजो, होम स्कूलिंग करो. कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता. ये आपको बहुत सोच समझ के कॉन्शियसली एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे होम स्कूलिंग करानी है. It is customization of teaching and learning based on the child's need. So customized approach, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो एक बेसिक एक जो फ्रेमवर्क होगा उसी में सभी बच्चे फिट होते हैं. उसमें इंडिविजुअल प्रोग्राम इंडिविजुअली नहीं होता ना, कस्टमाइज नहीं होता, हर बच्चे के हिसाब से नहीं होता. स्कूल का प्रोग्राम सब बच्चों के लिए सेम होता है. होम स्कूलिंग इज कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ लर्निंग फॉर एज पर द चाइल्ड्स नीड. बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज्ड वर्जन उसकी लर्निंग को कराना इज होम स्कूलिंग. सो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ होम स्कूलिंग कि होम स्कूलिंग होता क्या है. एंड नाउ व्हाई डू पीपल होम स्कूल? आपको लगता होगा, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ओनली स्पेशल नीड चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन हु डू नॉट कैन नॉट गो टू स्कूल डू होम स्कूलिंग. लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग करते हैं और उनके अलग अलग रीजंस होते हैं. तो व्हाई डू पीपल होम स्कूल? बिकॉज आपने देखा होगा कई बच्चे ना बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं. कई बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट रहते हैं. तो वो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स और वो बच्चे चाहते हैं कि वो अपने सिंगिंग पर ज्यादा ध्यान दें और बाकी चीजें जो हैं वो पैरेलल में चलती रहें. They don't want to give up their studies and they also want to take up the strengths of the child. So in those parents और चिल्ड्रन जिनको हम प्रोडिजी चिल्ड्रन भी बोलते हैं, जो अपने आप को किसी दूसरे फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल होम स्कूलिंग टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, वो लोग होम स्कूलिंग करते हैं. तो अगर किसी को रियाज करना है म्यूजिक का और दे नीड 5-6 hours of रियाज to work on music,
देन अगर वो बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कई कई जो बच्चे और पेरेंट्स अपने इनर स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं और इंटरेस्ट होती हैं उन पर काम करने के लिए पैरेलली होम स्कूलिंग करते हैं और साथ में अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है उस पर काम करते रहते हैं। देयर कैन बी मेडिकल कंडीशंस, देयर कैन बी किड्स हु ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस कैन नॉट गो टू स्कूल। It can be any reason, physical reasons or some other reasons. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसके कारण बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। उस केस में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो होम स्कूलिंग प्रेफर करते हैं। नेचर ऑफ जॉब, किसी पेरेंट की जॉब ऐसी होती है दैट दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग एंड देयर आर एंड दे गेट ट्रांसफर टू फ्यू एरियाज जहाँ पर उनको वो वाली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो कि वो चाहते हैं। तो उस केस में बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब दे होम स्कूल, दे ऑप्ट फॉर होम स्कूल। देन जो हम लोग हैं स्पेशल नीड, ड्यू टू स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन, some people homeschool एंड और कुछ लोग अपनी पर्सनल चॉइस के कारण होम स्कूल करते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ न्यूज़ भी देखी होगी कि कई लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है। आई ऑल्सो रेड समवेयर इन द न्यूज़ पेपर दैट दे आर ट्रैवलिंग इन अ बिग traveler kind of vehicle and they are homeschooling their children and they are going every corner of the country. There are parents, there are few parents, कुछ ऐसे हैं जो नेचर लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो बच्चे, उनके बच्चे जो हैं वो नेचर में ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें एंड दे ऑल्सो वांट टू, दे डोंट वांट टू स्टॉप द लर्निंग, दे वांट ऑल्सो कि वो लर्निंग भी चलती रहे, वो सीखते भी रहे। तो उस केस में पर्सनल चॉइसेस होती हैं कुछ पेरेंट्स की जिसके कारण वो होम स्कूल करते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल होम स्कूल। If in any case there is anyone is having any language problem, then please interrupt me so that I can translate in both the languages. I'm trying my best to use both the languages. Now, why we, the parents of homeschooling, why we, the parents of special need children, opt for homeschooling? हम लोग जो स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम लोग क्यों करना चाहेंगे होम स्कूलिंग? देयर कैन बी रीजंस फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। मेडिकल कंडीशन, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि देयर कैन बी सम चिल्ड्रन हु कैन हैव सम मेडिकल कंडीशंस due to which they are not able to attend the proper school. In that case, we can think about homeschooling. Their behaviors, there can be children, कुछ बच्चे के बिहेवियर जैसे होते हैं कि वो फॉर्मल स्कूल की सेटिंग में एडजस्ट नहीं कर पाते एंड देयर आर नो अदर school available in that area where the child can be included or accepted. So in that case we can think about homeschooling. So अगर आपके बच्चे के ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं जहाँ पर वो स्कूल एनवायरनमेंट में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है कि अगर वो घर में इन बिहेवियर्स के कारण उसकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, देन यू कैन थिंक अबाउट होमस्कूलिंग। एंड इफ देयर आर, अगर आपके एरिया में आपके नियर बाय कोई ऐसा स्कूल या ऐसा कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो इन बिहेवियर्स को टैकल करके उस चाइल्ड को एडजस्ट कर पाए, तो आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच सकते हो। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे एरियाज में, छोटे टाउन्स में रहते हो जहाँ पर थेरेपी सेंटर्स नहीं हैं, स्पेशल स्कूल्स नहीं हैं। अगर हैं तो वहाँ पर ऑटिज्म के बारे में या जो आपके बच्चे की जो भी आपके बच्चे का डायग्नोसिस है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको, और आप
रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, then you can think about होम स्कूलिंग्स. और देयर आर फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कुछ पेरेंट्स के, ड्यू टू विच they can थिंक अबाउट होम स्कूलिंग. तो बहुत सारी फैक्टर्स होंगे, वो आपको अपने अपने हिसाब से देखने होंगे कि मुझे होम स्कूलिंग क्यों करनी है. Not progress in the school or underestimated. Your child is going to some school, your child is going to a school, but you think that he or she can learn in the school. जो उसकी कैपेसिटी है उतनी लर्निंग नहीं हो रही है, वो बहुत पीछे. Somebody is unmute. Sonali ma'am, can you please mute that person? So if your child is going to school, आपका बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है लेकिन आपको लगता है कि वो उतना नहीं सीख पा रहा है जितनी की उसकी कैपेसिटी है, then you can think about homeschooling. So if there is no progress in the school, or the school is underestimating your child, then it is a personal decision. That you want to homeschool. Financial issues, which I already covered, that there can be some financial constraints, so we can in that case we can think about homeschooling. Now, benefits of homeschooling. What are when I am homeschooling, what all benefits I get. जब मैं homeschooling करूँगी तो मुझे क्या benefits मिल सकते हैं homeschooling करने से. वो कुछ benefits ये होते हैं कि it is flexible, it can go with the child likes and speed of learning. तो स्कूल तो फिक्स रहता है ना कि 8 बजे गए और 3 बजे आ रहे हो. कुछ बच्चों की मेडिकल कंडीशंस या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके कारण वो उनको उस टाइम फ्रेमवर्क में एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है. तो उस केस में आपको वो फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है. आपको ये फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है होम स्कूलिंग में कि आपका बच्चा मे बी मैथ और साइंस में जो स्कूल के सब्जेक्ट्स है उसमें इतना अच्छा नहीं है, बट आपका बच्चा जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में और म्यूजिक में और बाकी सब एरियाज में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, या फिर वो बहुत ही अच्छे से घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है. तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको होम स्कूलिंग फ्रेमवर्क देता है कि यू कैन गो विद द चाइल्ड लाइक्स एंड स्पीड ऑफ लर्निंग. तो आपके बच्चे के जो लाइक्स हैं, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग, स्कूल में तो सब एक शेड्यूल तरीके से चलेगा ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे रहेंगे. अगर आपका बच्चा उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग अगर इफ, तो आप ना ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत जरूरी है कि अगर ये कंडीशन मीट होती है तो हमें करना है. ओके, सो अगर आपका बच्चा अच्छे से उसकी लाइक्स और उसके हिसाब से सीख सकता है तो आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच सकते हो. होम स्कूलिंग आपको एक लविंग एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर मम्मी है या पापा है, बच्चा है, और एक लविंग एनवायरनमेंट बच्चे को मिल जाता है, स्पेशली फॉर द स्पेशल नीड चिल्ड्रन. अगर आपके स्कूल में एक ऐसा लविंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर बच्चा जा रहा है, मेन स्ट्रीम में अगर बच्चा जा रहा है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और आपको लग रहा है कि लर्निंग नहीं हो रही है, तो then you can think about it, and loving environment can be provided in the home school. Life and personal skills are learned in the place where the child will be using them. तो जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो ये फायदा होता है, ये बेनिफिट रहता है दैट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, क्योंकि घर में आपकी मोस्टली ऐसी स्किल्स रहती हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी. लाइक खाना बनाना है, सफाई करना है, कपड़े सुखाना है, इस तरह की स्किल्स जो कि एक स्कूल एनवायरनमेंट में सीखना बहुत मुश्किल होता है. तो लाइफ एंड personal skills सिखाने के लिए home is the best place. So life and personal skills are learned in the place where the child mostly will be using them. If there are financial or travel constraints, then it helps a lot. And when you work with your child, even if you are not homeschooling but you are working with your child, then it increases your confidence in the child and child's self-esteem.
when you bond with the child and you work with the child, then there is a lot of self-esteem and there is lot of confidence in you and your child. And it does not mean that we have to homeschool only. You have to bond with the child and you have to be a part of child's learning जर्नी. तो वो बेनिफिट आपको होम स्कूलिंग बहुत अच्छे से देता है क्योंकि आपको ज़्यादा मौका मिलता है. यू गेट मोर टाइम टू बॉन्ड विद योर चाइल्ड. यू आर पार्टनर इन हिज और हर लर्निंग. तो वो होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स रहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, a loving environment, a place where most of the skills learned can be applied, travel and financial constraint if anybody has, and it will increase the self esteem and confidence. ये benefits रहते हैं होम स्कूलिंग के. By mistake I have deleted one slide. I will I'll just go through that slide. That why parent led homeschooling. Parent led homeschooling should be because हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी होती है. अगर हम दो तरह की होम स्कूलिंग होती है ना, कि एक में तो आपने होम स्कूलिंग किया, आप अपने आप कर रहे हो, और एक दूसरे में आता है कि ट्यूटर आएंगे या थेरेपिस्ट आते रहेंगे एंड दे विल कीप वर्किंग विद योर चाइल्ड. बट द पेरेंट लेड होम स्कूलिंग जो होती है वो इसलिए अच्छी होती है कि एक तो वो आपको 24/7 अवेलेबल रहती है. जो भी आएगा वो कुछ टाइम के लिए आएगा और चला जाएगा, लेकिन पेरेंट विल बी देयर 24/7. सो 24/7 मतलब आप जितना भी टाइम बच्चे के साथ हो वो आप उसकी लर्निंग में स्पेंड कर सकते हो. दूसरा ये फायदा होता है पेरेंट लेड अप्रोच का कि आप का एक बॉन्डिंग जो बन जाती है बच्चे के साथ, वो बहुत अच्छे से हेल्प करती है और बच्चे को आपके लर्निंग में, और आपको बहुत हेल्प करती है आपके बच्चे को समझने में. तो दोनों तरफ से ये फायदा होता है. बच्चे की लर्निंग फास्ट हो जाती है और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हो व्हेन यू आर लीडिंग द होम स्कूलिंग प्रोग्राम. Third is like we love our children unconditionally. There is no condition. Parents' love is pure and unconditional. So whatever we do with full dedication. We do with full motivation. तो उसमें हमें externally motivate, externally dedicate वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती. We are self motivated and we are self dedicated for the progress of our children. देन आप जब खुद से बच्चे के साथ काम करते हो, देन यू ऑब्जर्व. when you are working yourself, then you keep observing the child, and that observation helps a lot in understanding the strengths and weakness of your child. तो आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाते हो. अगर आप पेरेंट लेड अप्रोच फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हो कि गैप्स कहाँ पर हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किस स्ट्रेंथ्स को आप यूज कर सकते हो उसकी लर्निंग के लिए. तो दीज आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ पेरेंट लेड अप्रोच. देन वी हैव मिथ्स. There are some myths. I think most of you must also be having these in your mind. So there are few myths about homeschooling, and especially about I am talking especially about homeschooling a special needs child. So here are few myths that some people think that homeschooling is only about academics. So कुछ लोग ये समझते हैं कि होम स्कूलिंग का मतलब है हम घर में बैठेंगे, बुक्स लेकर बैठ जाएंगे और सारे दिन हम पढ़ाई करते रहेंगे. इट इज ओनली अबाउट होम एकेडमिक्स. आप लोगों को भी शायद ये डाउट होगा किसी किसी को कि बस हमें घर में बैठना है और बच्चे को इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, and that is called homeschooling, which exactly it is not, and we will talk what it is. If I am homeschooling, I am not supposed to take external help. This perception is there when we start homeschooling. तो जब हम सोचते हैं ना कि मैं होम स्कूलिंग करूंगी या मैं होम स्कूलिंग करने वाला हूँ, तो हम सोचते हैं कि मतलब मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने बच्चे की
I have taken all the responsibilities of my child now, and asking help is embarrassing, क्योंकि मैंने तो सबको बोल दिया कि मैं तो होम स्कूलिंग करने वाली हूँ, तो अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे को तो ये हेल्प चाहिए, मुझे ओटी में नहीं आ रहा, कैसे करूँ मैं, या मुझे स्पीच में अब नहीं पता मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो इफ आई एम होम स्कूलिंग, हमें भी था ये डाउट कि अगर हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो शायद एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही रियलाइज हो गया, एंड व्हेन वी वर होम स्कूलिंग वी वर टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, and I will talk about that. Okay, so this is a very these are very important things. If you are thinking about homeschooling, then you have to consider these points. Some people think it is repetitive and boring. बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हो, आप इतने ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हो जब आप होम स्कूलिंग करते हो कि आपको लगता है कि अच्छा, मैं ये भी सोच सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी एडवेंचरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो कई लोगों को लगता है कि हम बस रिपीटेटिव और बोरिंग काम करते रहेंगे, रोज बैठेंगे, किताबें बुक्स ले जाएंगे, बुक्स लेंगे, रोज हम एक ही काम करते रहेंगे और देयर इज नो एक्साइटमेंट एट ऑल, इट इज़ वेरी बोरिंग। So it is not, believe me, it is very adventurous, it is very exciting, and it is a very good learning. Then some people think that it limits learning to home while outside world is more challenging. ये कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ तो मैं घर में ही लिमिटेड रह जाऊंगा, जबकि आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे बच्चे के लिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आप जब प्लान करते हो होम स्कूलिंग तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि घर तक ही लिमिटेड ना रहे, हमें उसे एक्सपोजर भी देना है। होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सारे टाइम घर में ही बैठे रहेंगे, हमें एक्सपोजर भी देना है, हमें बच्चे को सोशल प्लेसेस पर ले जाना है, सोशल गैदरिंग्स में भी ले जाना है, जहाँ पर हो सके उसको फ्रेंड्स बना, मतलब कोशिश करनी है कि और बच्चों के साथ वो मिंगल हो। तो वो अगर हम अपने होम स्कूलिंग प्लान में इंक्लूड कर लेंगे then it is a myth that it can be challenging। तो वो आपको थोड़ा सा अपने होम स्कूलिंग प्लान में अगर आप ध्यान से करोगे then it is not a myth। You can do many things which the child will learn and which will prepare him for the outside world। इट मेक्स किड्स सोशली ऑकवर्ड, दिस इज द सेम थिंग लाइक, लेकिन अगर मेरा बच्चा ना घर में रह रहा है तो वो बाहर के लोगों से मिलना उसको आएगा ही नहीं, कभी कभी भी वो दूसरे लोगों के साथ मिंगल नहीं हो पाएगा। अगेन ये आपके अगर प्लान में आप सोशल गोल्स लेकर चलोगे तो ऐसा नहीं होगा। सो इट इज अ मिथ, ओनली पेरेंट्स हु आर क्वालिफाइड टीचर्स कैन डू इट। हम में से कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे तो टीचिंग का एबीसी भी नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाना होता है मुझे, तो हम शायद मुझे कोई डिग्री करनी होगी, शायद मुझे कोई कोर्स करना होगा, तब मैं ये कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। इट मदर इज द मदर और फादर आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ अ चाइल्ड। ये सब आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद दैट कि जितना बच्चा अपने मम्मी और पापा से सीखता है, अपने माता और पिता से सीखता है, उतना वो किसी से नहीं सीखता। द फर्स्ट टीचर्स ऑफ अ चाइल्ड आर पेरेंट्स, मदर एंड फादर। तो हम कर सकते हैं, एवरी पेरेंट कैन डू इट, एंड वी डोंट हैव टू बी अ क्वालिफाइड टीचर फॉर दैट, इट इज जस्ट अ मिथ। बट yes, we have to be an empowered parent। हमें अपने आप को एम्पावर करना बहुत जरूरी है अगर हमें होम स्कूलिंग करनी है। एम्पावर मतलब कि ओटी के बारे में हमें सब पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, मेरे बच्चे की क्या सेंसिटिव नीड्स हैं, उसके सोशल गोल्स क्या होंगे। तो उसके लिए बहुत तरीके होते हैं अपने आप को एम्पावर करने के, एंड देयर आर मेनी एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो गो ऑन, so you can
take help from those. But it is a myth that you need to do a special course or special teaching experience to do homeschooling. सो अगर होम स्कूलिंग एकेडमिक्स नहीं है, अगर होम स्कूलिंग का मतलब इट इज़ नॉट लाइक सिटिंग विद योर चाइल्ड एंड वर्किंग टेबल टॉप, देन व्हाट इज होम स्कूलिंग? What exactly is homeschooling? What exactly is homeschooling? It is an holistic approach, holistic development of the child. तो होम स्कूलिंग का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता. होम स्कूलिंग एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें आप देखेंगे आपके बच्चे की सारे एरियाज कवर होते हैं. सेंसरी नीड्स, एकेडमिक्स, प्ले एंड लेजर, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसमें आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांसिंग सब कुछ आता है, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर, लाइफ स्किल्स, फिजिकल, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, और मे बी देयर आर मैं कुछ स्किल्स शायद भूल भी गई होंगी डालना इसमें. बट इट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट. इट इज़ नॉट एकेडमिक सेंट्रिक अप्रोच. इट इज़ नॉट कि हम बस बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे. दैट इज नॉट होम स्कूलिंग. इट इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इट वर्क्स ऑन ऑल द एरियाज. And when you are homeschooling, then you have to think about it that I have to cover all these areas. All these areas have to be covered while I am homeschooling. Then comes this is very confusing thing for parents, like what is the difference between homeschooling and open schooling? तो हमने we started an NIS group and everyone started कि हमें भी homeschooling के बारे में बता दीजिए, homeschooling के बारे में बता दीजिए. So open schooling, NIS is open schooling board. Open schooling is very different from homeschooling. Open schooling is like your child is either he is being homeschooled or he is going to some school, but he is not appearing for मेन स्ट्रीम वाला जो एग्जाम्स होता है उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग ऑल द जो एग्जामिनेशन एंड स्टडीज थ्रू ओपन स्कूलिंग, थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड और सम अदर ओपन बोर्ड, जिसमें कि एकेडमिक्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं. तो अगर आप तो चाहते हो कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा बट वो एकेडमिकली ग्रो करता रहे, देन ओपन स्कूलिंग इज एन ऑप्शन where the child will not go to school. You are homeschooling the child. You are doing all the academics at home. जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है एकेडमिक्स, उसमें आप वो ओपन स्कूलिंग वाला करिकुलम फॉलो कर रहे हो उस एकेडमिक वाले पार्ट के लिए. एंड योर चाइल्ड विल अपियर फॉर द एग्जाम्स थ्रू द ओपन बोर्ड, जिसमें उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. तो ओपन स्कूलिंग इज जस्ट अ पार्ट. इफ आई गो तो यहाँ की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसका जो ये एकेडमिक वाला जो पार्ट है, एकेडमिक्स, this comes for open schooling. So open schooling is just a small part of homeschooling. Homeschooling involves lot of other things जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन की है. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. So you can also see in this Venn diagram that homeschooling is big. Homeschooling is big thing, and open schooling is just a subset of homeschooling. And open schooling के लिए homeschooling करना भी जरूरी नहीं है. आपका बच्चा स्पेशल स्कूल में जा रहा है या मेन स्ट्रीम में जा रहा है, that school can also support open schooling. तो open schooling अपने आप में एक अलग एरिया है और ये एक सबसेट भी हो सकता है होमस्कूलिंग का. बट open schooling and homeschooling are not the same thing. They are not the same thing. तो जो confusion है कि हमने तो OBE में रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब हमें होम स्कूलिंग करनी होगी, या होम स्कूलिंग अगर हम कर रहे हैं तो बस अब हम OBE या NIS का सिलेबस ही कराएंगे और कुछ हमें नहीं कराना है. तो वो आज आप क्लियर कर लीजिए कि होम स्कूलिंग जब आप करवा रहे हो आपको सब कुछ करवाना है. सिलेबस, एकेडमिक सिलेबस, प्ले, लेजर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, स्पीच कम्युनिकेशन, प्ले, social communication, everything has to be covered. Holistic development of the child. And
जब आप ओपन स्कूलिंग ऑप्ट कर रहे हो तो वो जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट है उस होम स्कूलिंग का जो आपकी प्लानिंग में इंक्लूडेड होगा. Now I will talk about the challenges that can follow a homeschooling approach. So homeschooling needs a lot of time through the by the parents. Like आप जब होमस्कूलिंग करते हो तो आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से प्रेजेंट होना पड़ता है बच्चे के साथ, फिजिकली एंड इमोशनली. ऐसा नहीं है कि हम लेकर बैठे हैं, बुक्स लेकर बैठे हैं या हम कुछ ओटी की एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चा तो कर रहा है एंड यू आर समवेयर लॉस्ट. नो, इट नीड्स योर फिजिकल एंड इमोशनल प्रेजेंस most of the time. So it is a time consuming thing. You have to dedicate a lot of time for homeschooling. Kids are growing up and coming up with new behaviors and sensory needs. बच्चे तो बड़े होंगे. आज जब हमने होम स्कूलिंग स्टार्ट किया था देन माई सन वॉज 6 years old. नाउ ही इज 13 years old. सो दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग अप में कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ सेंसिटिव नीड्स आती हैं. तो आप एक चीज़ कराओगे देन अदर थिंग इज ऑलवेज रेडी टू वर्क ऑन. So it is a challenging thing. The kids growing up and new behavior, sensory needs, they keep coming. External factors and challenges. हम एक फैमिली में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं. हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, हमारी फैमिली में बहुत कुछ होता है और होम स्कूलिंग को वो अफेक्ट कर सकता है बिकॉज वी एज अ पर्सन आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो अगर जो मेन लीडर है होम स्कूलिंग का अगर वो अफेक्ट होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण तो होम स्कूलिंग भी अफेक्ट हो सकती है एंड इट इज़ अ चैलेंज. लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम. होम स्कूलिंग में योर सपोर्ट सिस्टम is very very important. Family support, friend support, professional support, every kind of support is very very important and it is a challenge. It is a challenge to make everybody understand. सब तो बोलेंगे ना कि तुम क्यों कर रहे हो होम स्कूलिंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल थिंग टू डू. और आपको हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर प्रोफेशनली आपके पास सपोर्ट ना हो, सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो इट कैन बी अ चैलेंज. That support, lack of support system can be a challenge for you. For kids, initially it may be difficult to transition from school to homeschool. बच्चों के साथ ये ट्रांजिशन की प्रॉब्लम आएगी और आती भी है. अचानक से आपने स्कूल जाना क्यों छुड़वा दिया, होम स्कूलिंग क्यों करवा रहे हो. एंड आवर चिल्ड्रन, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, मे बी most of them, many of them are non-verbal. They won't be able to communicate and then there can be behaviors, then there can be denials, there can be rejections. So this can be a challenge. This can be a challenge that the child will resist homeschooling. Initially it can be a challenge. There can be a lot of resistance from the society, it can be a lot of resistance from the child, lot of resistance from your inner जो अपनी आवाज, अपना अंतर्मन जो होता है वो भी आपको रेजिस्ट करेगा कि नहीं भाई तुम सही भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो दैट इज अ कॉन्शियस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी टेकन बाय द पेरेंट. अब उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी ओवरकम द चैलेंजेस. Before you start homeschooling, you build a strong support system. You need to build a strong support system so that आपको एक अच्छा, आपको जब होम स्कूलिंग करेंगे तो आपको बहुत टाइम की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी बताया. अब उस टाइम में आपके पास घर का भी काम होता है, राइट. घर का काम भी है और बच्चे भी होते हैं. मेरी तरह सब एक बच्चे, मेरे पास तो एक ही है, हो सकता है आपके पास दो हो, दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं. तो फिर आपको वो बच्चों को भी देखना है, आपके घर में
एल्डर्स हो सकते हैं जिनकी टेक केयर करनी है, और बहुत सारे काम घर में होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना लोगे, जिसमें या तो आप मेड की हेल्प ले लो या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लो, और जिसमें सबकी वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो आपको इजी हो जाएगा उस होम स्कूलिंग को, कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं अपने बच्चे के साथ काम कर रही हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, राइट? किसी फ्रेंड की हेल्प, नेबर की हेल्प, किसी जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपको वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत होती है, ताकि आपको बाकी आगे जाकर चैलेंज ना आए। जहां पर सीक प्रोफेशनल हेल्प वेयर एवर नीडेड। अगर आपको होम स्कूलिंग करते हुए ऐसा लगता है कि आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन स्पीच नाउ, आई डोंट नो हाउ माय स्पेशल एजुकेशन प्लान शुड बी, then seek professional help. It will help you a lot to overcome the challenge. Empower yourself. Empowerment is very, very important. You need to empower yourself. An empowered parent is a big asset for the child for lifetime. अगर आप एक बार अपने आप को एम्पावर्ड कर लोगे, तो आप लाइफ में अपने बच्चे के साथ, उसके चैलेंजेस के साथ बहुत अच्छे से उनको फेस कर पाओगे, और आप एक बार डील करना सीख जाओगे, एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, तो आपकी और आपके बच्चे की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। सो एम्पावरमेंट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस टेक्निक्स टू बी मोर काम एंड मोर पेशेंट। होम स्कूलिंग जिसने की है, अभी वी विल शेयर आवर जर्नी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट नीड्स टू बी काम। गुस्से में नहीं कर सकते आप कभी होम स्कूलिंग। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपको बहुत इरिटेशन रहती है कि नहीं नहीं ये तो नहीं कर रहा, मैं 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया, अब तो नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल आती है। इट्स अ बिग चैलेंज। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपके नेचर में है इम्पेशेंट हो, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, तो प्लीज पहले आप काम हो जाइए, पेशेंट हो जाइए, उस अपने आप पर काम कीजिए, तब बच्चे के साथ हम काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। प्रिपेयर किड्स फॉर ट्रांजिशंस, डोंट जस्ट जंप इनटू इट, गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप होम स्कूलिंग के लिए सोच रहे हो, तो आप अपने बच्चे को भी बताना शुरू कर दीजिए, कैलेंडर पर डेट मार्क कर दीजिए, आज से इस डेट से हम स्कूल नहीं जाएंगे, या इस डेट से ये थेरेपी बंद होने वाली है, इस डेट से मम्मा के साथ काम करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। वो भी मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू कैसे करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमारे ग्रुप्स में भी बहुत बार शेयर होता है, और आई थिंक एवरीबडी इज पार्ट ऑफ एनी कोई ना किसी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का, कि खाली गिलास में से, एम्प्टी ग्लास में से कुछ नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट पोर आउट ऑफ एन एम्प्टी ग्लास। सो अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हो, तो आपको भी हेल्दी होना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आपको उस पर ध्यान देना है, ताकि आप वो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ जो कि होम स्कूलिंग में आते हैं, राइट? नाउ इफ यू प्लान कि हाँ अच्छा, मेरे आसपास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, अभी मुझे रेडी होना है होम स्कूलिंग के लिए, यू हैव टू गेट रेडी फॉर होम स्कूलिंग, देन व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू बी रेडी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, जो कुछ रिपीटेशन होंगी चैलेंजेस की, बट these are very important points which you need to get ready for homeschooling. Build a strong support system. Talk with your friends and family. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का होना। Empower yourself. That also we discussed. You need to be empowered parent to homeschool your child. Plan your goals. Planning is very, very important. Not even in homeschooling, but everywhere. Planning is very, very important. If you are clear with your goals and how you break up the, then it is then you are done. Like it will make your homeschooling journey very smooth and a pleasant ride. Make a list of areas where you need external and professional support. जब आप प्लानिंग करोगे ना अपने गोल्स की, when you will plan your goals,
then you will come to the areas जो जहाँ पर you will need professional support. तो आपको वो list down करने हैं areas जहाँ पर आपको professional support की जरूरत है. Plan your time. Proper time management is very very important. When you are when you are thinking about homeschooling, then you have to think कि किस टाइम से किस टाइम तक मुझे करना है, क्या करना है, कब मुझे एकेडमिक्स कराने हैं, कब मुझे लेजर स्किल्स पर काम करना है, कब लाइफ स्किल्स पर काम करना है, मेरे डे कैसे डिवाइड होगा, कैसे उसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, वो बहुत जरूरी होता है. तो प्लान योर टाइम, और अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है. तो जब आप प्लानिंग करोगे तो आप बच्चे के लिए तो प्लान करोगे, आपको अपने लिए भी प्लान करना है, मी टाइम भी निकालना है, फैमिली टाइम भी निकालना है. उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है. प्लान योर डेज, वीक्स एंड मंथ्स. सब कुछ प्लान करके चलेंगे तो बहुत स्मूथली हमारा काम हो जाएगा. Do the physical arrangements wherever needed. जब आप goals बनाओगे, whenever you will make goals, you will do planning, then you will also come to know what are the physical things. कुछ कुछ चीजें घर में हो सकता है चेंज करनी हो, कुछ चेयर टेबल की जरूरत हो, कुछ टीचिंग रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है, कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत लग सकती है आपको जब आप गोल्स बनाओगे. सो दीज आर द फिजिकल अरेंजमेंट्स यू कैन डू. Prepare yourself physically and mentally. This is again a repetition of challenges कि अगर आप physically और mentally prepare होगे तो आप अच्छे से अपने आप को होम स्कूलिंग के लिए रेडी कर सकते हो. Most important is believe in yourself and your child. That is very very important thing. अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आपने सोच लिया है होम स्कूलिंग करनी है, तो आप ना ये सोच के चलो, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मेरा बच्चा कर सकता है. Believe in yourself and your child is very very important. If you will believe in yourself and your child, then everything is possible. It is possible to achieve anything if you believe in yourself. So these are few things which are from the parents' point of view. Now getting ready with your child, what you can do with your child when you are getting ready for homeschooling. जो मैंने पहले भी बताया, स्टार्ट टॉकिंग टू योर चाइल्ड डेज बिफोर यू स्टार्ट. आप अपने पहले ही से ही कैलेंडर पर मार्क कर दीजिए, आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज से मम्मा ही तुम्हें पढ़ाएंगी. राइट. सो टेक हेल्प ऑफ विजुअल्स एंड सोशल स्टोरीज. अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपको बताना शुरू करना है. अगर वो किसी थेरेपी सेंटर में जाता है तब भी आपको बताना शुरू करना है. अगर आपका बच्चा कहीं भी ही नहीं जाता लेकिन अभी तक आपने वो होम स्कूलिंग नहीं की है, लर्निंग प्रोसेस शुरू नहीं किया है, तब भी आपको अपने बच्चे को बताना है कि अब मम्मा आपके साथ पढ़ाई, अब हम थोड़ा सा ना फन करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, और आप उसके लिए विजुअल्स और सोशल स्टोरीज की हेल्प लेके स्टार्ट बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी डूइंग इट. अगर आप अपने बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में पार्टनर बनना चाहते हो, then please start bonding with your child if you are not already doing it. Bonding with your child is very very important, even if you are homeschooling or you are not homeschooling. That is two different things, but bonding with your child is very very important. अगर आप अपने child के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी डिसइंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं रखते हो, वैसे तो हर माँ रखती है ये सब नॉलेज. इन केस यू आर मिसिंग दैट बॉन्ड, प्लीज start bonding with your child. Start observing your child. अब इफ यू आर थिंकिंग कि हम होम स्कूलिंग करने वाले हैं, तो आज से ही आप ऑब्जर्व करना अपने बच्चे को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज observing your child will help you to understand your child, his strengths and his weakness, and it will help in planning goals, which we will do in a separate session. I have also done that session earlier too, that how we plan goals and everything, that and observation, why observation is very very important. So if you are thinking about homeschooling, even if you are thinking about being a partner of your child in a learning process, then also observe your child.
अगर आपका बच्चा स्कूल भी जाता है ना, मेन स्ट्रीम भी जाता है या कहीं भी जाता है, तो भी आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी सेंसरी नीड्स क्या है, क्यों वो बार बार किसी चीज़ को टच करता है, क्यों वो बार बार किसी चीज़ को स्मेल करता है, क्यों वो इधर से उधर इतना घूमता है, क्यों वो एक जगह बैठा रहता है। बहुत सारी अपने अपने बच्चे की सबकी अलग अलग होगी, राइट। तो वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू करना है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट वर्किंग विद योर चाइल्ड फॉर सम टाइम इन अ डे। This is for every mother or a parent that स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप अपने बच्चे के साथ ना थोड़ा टाइम जरूर दीजिए दिन में। होम स्कूलिंग पेरेंट को तो बहुत सारा टाइम देना है, बट हर हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा काम करना, थोड़ा फन करना, थोड़ा सा लर्निंग में पार्टनर बनना शुरू कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट। एंड होम स्कूलिंग पेरेंट का अगर आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप एकदम से पूरा दिन नहीं करोगे बच्चे के साथ। पहले तो आप बच्चे को रेडी करोगे और थोड़ा थोड़ा करके मे बी 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, देन 1 आवर, ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपने बच्चे को प्रिपेयर और अपने आप को प्रिपेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया गेटिंग रेडी फॉर होम स्कूल। नाउ बैकबोन्स फॉर सक्सेस। बैकबोन्स क्या रहती हैं होम स्कूलिंग सक्सेस की, which I have been discussing for last 10-15 minutes. Homeschooling will be successful if you have a strong support system. Support system is a backbone for a successful homeschooling. You need a support system, a strong support system for homeschooling success. You need a proper time management. Time management is very very important for homeschooling. ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, बच्चा मेरा घर पर ही लर्निंग कर रहा है। आज तो मैंने 9 बजे से 12 बजे तक कर लिया, फिर मैं अगले दिन मुझे कुछ काम आ गया तो हमने कुछ भी नहीं किया। फिर उससे अगले दिन हमने 30 मिनट्स कर लिया, फिर उससे अगले दिन फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे छोड़ते गए और बीच में क्या हुआ कि बस अब हम एक वीक में एक बार बैठ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने टाइम को मैनेज ही नहीं किया था, हमने एक टाइम टेबल ही नहीं बनाया था। तो टाइम टेबल बनाना, एक पूरा शेड्यूल बनाना, उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना। So time management is very very important, very very important. It is a backbone of homeschooling. Time management is backbone of homeschooling. Then planning goals, which we also call IEP, जो में customized planning goals। आपके बच्चे के हिसाब से उस goals plan करना। पहले बिगर गोल्स होंगे, बड़े गोल्स रहेंगे, फिर उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर छोटे पार्ट्स के भी छोटे छोटे गोल्स होंगे और उन गोल्स को कब कब करवाना है वो हमारा प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट में दोनों में इंक्लूड होगा। सो प्लानिंग ऑल्सो इज अ प्लानिंग, customized planning as per your child, as per your child's likes and interests and as per your child's development goals or whatever goals जो भी आपके बच्चे के आपने डिसाइड किए हैं कि ये गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ बिग बैकबोन। बैकबोन का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्लानिंग है। फिर हमने प्लान बना लिया, टाइम मैनेजमेंट, सपोर्ट सिस्टम। रिव्यू ऑफ प्लान्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्लान भी बना लिया, टाइम मैनेजमेंट भी कर ली, लेकिन अभी हमें रिव्यू भी करना है। रिव्यू पीरियड कैन बी अ 15 months पीरियड और अ 1 month पीरियड। मैंने ये गोल्स बनाए थे, उसमें से कौन से गोल्स हो गए, कौन से गोल्स रह गए, कौन से गोल्स अभी मुझे मेंटेनेंस में करने हैं, मतलब वो कि बीच बीच में कराते रहना है, और कौन से नए गोल्स मुझे अब इंट्रोड्यूस करने हैं। दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ रिव्यू प्लान। रिव्यू प्लान गोल्स के जो रिव्यू प्लान्स हो गए। मैंने सोचा था हम 4 घंटे बैठेंगे, पर हम 2 घंटे ही बैठ पा रहे हैं। सो मैं आई नीड टू रिव्यू माई टाइम मैनेजमेंट। सो रिव्यू प्लान्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर पार्ट ऑफ बैकबोन्स फॉर होम स्कूलिंग। देन कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, जो कि मैंने अभी बताया कि आप एक दिन बैठ रहे हो, दूसरे दिन नहीं बैठ रहे हो, 2 बार आपने ट्राई किया, बच्चे ने नहीं किया एंड यू गिव अप।
That is not the approach. We will try, keep trying, and if the child is not learning, we will review our approach and we can change the approach, but we will keep trying. So consistency and patience are very important. They are backbones for homeschooling. Passion, belief, and willingness. You have to be very passionate. मुझे करना है, प्यार से करना है, बहुत अच्छे से करेंगे. मैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड. यस, आई कैन डू इट. एंड विलिंगनेस. बिना मन से किया हुआ काम तो कभी कोई भी अच्छे से नहीं होता है. तो आप पूरी विलिंगनेस के लिए साथ अगर आप काम करोगे, then it will be very successful. And empowered parent is the backbone of homeschooling. आपको अगर अच्छे से empowered हो, सब चीज़ों का पता है, तो उससे that is a very very important thing for a successful homeschooling. So these are few points, these are few things for a successful homeschooling. And after that, I will do this after the stories, that why and when should we homeschool. After the stories, we will talk about it. So now the theory part is done and we are ready for sharing the real stories. So Sonali ma'am, over to you, and we can start with the surprise mom. All right. So it's time for hearing some homeschooling stories. मतलब ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को सक्सेसफुली, मीनिंगफुली, फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम होम स्कूल किया है घर पे, एंड विद सम सक्सेसफुल आउटकम्स. उन्हें फील हुआ कि यस, आई हैव डन इट, और मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से होम स्कूल करके होलिस्टिक डेवलपमेंट के आउटकम्स अचीव किए. सो वो स्टोरीज हम सुनने वाले हैं कुछ मॉम्स से, एंड वन ऑफ देम इज राइट हियर विद अस, हेमा राव. Hema Rao, you're so welcome. You're so welcome. She's a mother to two beautiful. You're on mute, by the way. हम stories imagine नहीं करना चाहते, हम actually सुनना चाहते हैं आपसे. So she's a mother of two beautiful, awesome, bright boys who are on the autism spectrum, Pranav and Shashank. I hope I've named them correctly. Pranav and Shashank के हम बहुत amazing videos देखते रहते हैं on the parents groups. She keeps sharing. A very good thing about these moms is that they keep sharing. जो भी वो नया कुछ अपने बच्चे के साथ करते हैं या ट्राई करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, उनके बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, अगर उन्होंने ट्राई किया तो वो शेयर करते हैं, which is very empowering for the rest of them. And so over to you, Shashank and Pranav ki mama. You're so welcome to share your homeschooling story with us. She's Hema Rao. Thank you for joining us. Thank you so much. It's a privilege to hear a story. And thank you. Apart from the theory involved in homeschooling, so what does your experience and your story look like? Let's hear it from you. Okay, thank you, ma'am. First of all, thanks for all this opportunity, actually sharing my experience. This is actually a motivation for me too. शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मुझे अगर आप सक्सेसफुल मदर मानते हो, दैट्स अगेन अ प्राउड फीलिंग फॉर मी. सो मेरा होम स्कूलिंग ऐसे स्टार्ट हुआ कि फर्स्ट मदर आई स्पोक टू वाज वंदना. मैंने वंदना से बात किया था अराउंड 3-4 साल पहले. ये सब कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं था. जस्ट थ्रू अ ग्रुप आई गॉट टू नो दैट वंदना इज होम स्कूलिंग. तो मेरे दिमाग में भी यही सब था जो वंदना ने बोला था कि ऐसे जो मिथ्स होते हैं कि क्योंकि इसने सक्षम को वंदना मैम ने सक्षम को वो एनआईएस करवाया था, तो मैंने क्लियरली कुछ बात नहीं किया था, बस ये होम स्कूलिंग कर रही है वंदना गौतम मैम, तो होम स्कूलिंग करते हैं तो वी हैव टू डू एनआईएस, ये दिमाग में था मेरे को. बाद में लेकिन ये हमेशा चलता रहता था, कैसे किया होगा उन्होंने, कितने अच्छे से किया होगा उन्होंने, कि मतलब वो एनआईएस कर रहा है इसका मतलब है बहुत अच्छे से किया होगा, पता नहीं कितना टाइम दिया होगा उन्होंने करके, ऐसे सब लगता था मुझे, बहुत टाइम दिया होगा तो इस वजह से हुआ, तो मेरे से हो नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी ना, मेरे बच्चे एकेडमिक्स कर पाएंगे, ऐसे सब भी लग रहा था मुझे. तो बाद में the time came
when practically मुझे इसको अप्लाई करना पड़ा. That is this ये कोरोना टाइम्स जो भी आया, this forced me. That time the major challenges what I was having was कि just a minute. The major challenges what I was having was प्रणव के काफ़ी सारे, मेरा एल्डर वन who was 14 years old, इसके काफ़ी सारे challenges चल रहे थे, behavior issues चल रहे थे. He was going through multiple problems. एक तो वो teenage enter कर रहा था. Second one was he was going through tics problem. तो टिक्स की वजह से उसको तकलीफ हो रही थी. दैट वाज ऑल न्यू फॉर हिम, न्यू फॉर अस आल्सो एज पेरेंट्स, न्यू फॉर अस आल्सो. वी वर हैविंग मेनी स्लीपलेस नाइट्स. ही वाज गेटिंग वेरी एग्रेसिव. एग्रेशन यहाँ तक गया कि इसने स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ दी. वाटर कूलर तोड़ दिया था, एसी वेंट तोड़ दिया था. तो the school people were not complaining but they were feeling very helpless कि हम इस बच्चे की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने उसका टाइम टेबल चेंज किया, उसके एक्टिविटीज चेंज किए, उन्होंने सब कुछ किया था बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प हिम. तो ये कोरोना ऐसा टाइम हो गया कि स्कूल अपने आप से बंद हो गया एंड आई वाज फोर्स्ड टू डू होम स्कूलिंग. एंड एट द टाइम ऑफ मतलब मेरे दिमाग में जब होम स्कूलिंग करके आया तो मेरे पास चैलेंजेस इनके दोनों के, प्रणव का तो बिहेवियर इशू था ही एंड शशांक वाज गोइंग थ्रू, उसका कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि he was going through all kinds of challenges. मतलब वो उसको सेंसरी इश्यूज इतने हाई चल रहे थे कि ऑडिटरी, विजुअल, एवरीथिंग वाज ऑन अ हायर नोट. तो देन व्हाट आई डिड वाज, ये मैंने वंदना गौतम से जो 4 साल पहले बात करी थी, उनकी जो 3 घंटे की जो स्कूलिंग करके जो उन्होंने किया था 2 बच्चों के साथ अपना, वो सब मैंने याद किया एंड आई स्पोक टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. तो उनके थ्रू मैंने वो किया कि प्रॉपर स्कूल, इट्स माय और अ होम स्कूल, दैट इज एक्टिविटीज अंडर द रूफ ऑफ ऑटिज्म. इनका हमारा एक प्रॉपर होम स्कूल करके स्टार्ट किया. एंड एट दैट टाइम द टारगेट्स वर जो भी इनके स्कूल में छोड़ दिया था, मतलब जहाँ पर वो ड्रॉप हुआ था स्कूल का, जैसे जो एकेडमिक्स में जो नंबर्स करके चल रहे थे वो, एंड देन प्रणव के जो सेंटेंसेस करके चल रहे थे वो, मतलब पर्टिकुलरली वही सब 4 लेके मैंने स्टार्ट किया. तो actually Vandana ma'am, I have shared a few videos and pics on your WhatsApp. मुझे नहीं पता ये सब स्क्रीन शेयरिंग कैसे करते हैं. एंड माय लैपटॉप इज वो बहुत ट्रबलसम कर रहा है मुझे कि ऑडियो इज नॉट क्लियर, सो मैं मोबाइल के थ्रू आना पड़ा मुझे. तो सी इफ यू कैन शेयर दैट फ्रॉम योर स्क्रीन. Yes, sure. You want me to share it now or after you are done speaking? ये अभी आप शेयर कर सकते हो क्योंकि मैंने उसमें टाइम टेबल के भी वो हैं, जो टाइम टेबल मैंने बनाए थे उसके पिक्स हैं, उसको आप शेयर कर सकते हो. तो मैंने 3 घंटे का प्रोग्राम टाइप बनाया था. तो उसमें आप वो वहाँ पे, हाँ इसमें देख सकते हो, ये इवनिंग का है, सुबह वाला प्लानिंग था. 10:30 to 1:30 मेरा स्कूल रहता था. तो 10:30 को प्रेयर एंड देन सर्कल टाइम प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया. वो बैग लेके आते थे प्रेयर के लिए एंड देन उसके बाद हम लोग बैग रख के सर्कल टाइम करके करते थे. एंड देन उसके बाद मैंने दोनों बच्चों का एक एक टारगेट ले दी थी, इधर एकेडमिक्स और एडीएल जैसे टाइम करता है उस 3 घंटे में मैं डिज़ाइन करती थी कि आज मुझे एडीएल पे ज़्यादा फोकस करना है कि आज मुझे एकेडमिक्स पे फोकस करना है ज़्यादा करके. तो एंड देन वन मोर थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व वाज आवर किड्स कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट मोर देन 20 मिनट्स. इनका नहीं हो पाता है, आप कितना भी वो कर लो, हो नहीं पाता था उस टाइम मेरे दोनों बच्चों का. तो इस वजह से ये मैंने ऑब्जर्व किया इनका. तो हर एक्टिविटी को मैंने 20 मिनट्स में कर दिया. एंड देन उसमें एक फ्रूट ब्रेक होता था जहाँ पे बच्चे दोनों अल्टरनेट डेज दे ओनली यूज टू कट द फ्रूट्स. सो वहाँ पे आपका कटिंग स्किल टिक हो गया. एंड देन दे ओनली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट 2 पीसेस, 4 पीसेस ऑफ एप्पल और वॉट एवर द फ्रूट्स आर देयर. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने काउंटिंग कवर अप कर लिया, हमने कटिंग स्किल कवर अप कर लिया. ऐसे करते करते जो काम मैं कर रही हूँ उसी काम में बच्चे को भी मैं इन्वॉल्व करती थी. एंड देन इफ आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स देन द किड्स विल काउंट एंड गिव मी दोज वेजिटेबल्स, ऐसे करके. तो इससे
क्या हो गया कि उन 3 घंटे में हम लोग कुछ ना कुछ कवर अप करते थे, एंड शशांक वाज गोइंग थ्रू ऑडिटरी विजुअल, तो वो ऑडिटरी विजुअल के लिए दिन भर ही वाज टेयरिंग द पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन किए कि वो पेपर भी टेयर करेगा, एंड उस पेपर टेयरिंग का हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी भी बनाएंगे। तो उसको कैसे चाहिए पेपर कटिंग, उसको ही वांटेड टू टेयर इट इन अ लॉन्ग, वो आपका जैसे हम लोग छोटा छोटा डॉट बना के एक फूल बना दिया, वो वाला नहीं चल रहा था उसको, ही वांटेड टू टेयर इट लॉन्ग। तो हम लोगों ने एक्टिविटीज ऐसे किए कि वो उस चीज को भी एंजॉय कर रहा था, तो उसकी वो सेंसरी नीड जो थी वो भी सेटिस्फाई हो रही थी। एंड देन ये देखिए प्रणव का जैसे ये लोग बैग लेके आते रहे प्रेयर के लिए, ये अगर स्कूल को रेडी करना है, वहाँ पे वो हॉल को रेडी करना है, तो दे ओनली पुश द टेबल, सो वहाँ पे आपका ओटी का एक्टिविटी एक हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी मिल जाता है बच्चे को। तो ऐसे 3 घंटे में हम लोग इतना कवर अप करते थे कि इवनिंग हम तीनों राजी खुशी आराम से पार्क जाते थे, एंड देन हम लोग मतलब वी कवर्ड अप एवरीथिंग, ड्रेसिंग स्किल कवर अप हो गया इसके थ्रू। सर्कल टाइम में मैं ऐसे दोनों बच्चों को डांस, छोटे से गाने पर हम लोग डांस करते थे, इसके थ्रू शशांक का फ्रॉम लॉन्ग टाइम द इमिटेशन स्किल वाज नॉट अचीव्ड, मतलब काफ़ी समझ लीजिए 2-3 साल से चल रहा था, ही वाज नॉट मतलब वो इमिटेट कर नहीं पा रहा था, तो ये स्किल हमने अचीव कर लिया। तो ये छोटे छोटे इसमें से आई वॉज वेरी हैप्पी। तो इसके थ्रू क्या हो गया कि आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि आई कैन मूव ऑन नाउ। तो इस टाइम मैंने होम स्कूलिंग ऐसे में स्टार्ट किया, आई लेफ्ट द एकेडमिक्स असाइड, आई ऑब्जर्व माई किड्स, क्या है उनके नीड्स, प्रणव को क्या चाहिए, प्रणव क्यों उसका बिहेवियर हो रहा है। प्रणव को लॉन्ग टर्म एक्टिविटी नहीं चाहिए था उस टाइम, ही वॉन्टेड शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, बहुत छोटा सा एक्टिविटी, एंड उसको एक अकम्पलिशमेंट का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए था बच्चे को कि मैंने ये काम कर लिया करके, क्योंकि ये सारे चीज़ स्कूल में हो नहीं पा रहे थे। तो मैंने सारे एक्टिविटीज को शॉर्ट कर दिए, एकदम स्मॉल ड्यूरेशन का, 10-15 मिनट का एक्टिविटी करना चेंज करना, 10-15 मिनट का एक्टिविटी करना चेंज करना। तो इसके थ्रू क्या हो गया कि उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन मैनेज बोथ माई किड्स एट होम करके। एंड देन अब हम लोग ऐसे इसमें पहुंच गए हैं कि नाउ आई नीड, नाउ हैव कॉन्फिडेंस कि इनको मैं थोड़ा बहुत अभी एकेडमिक्स सिखा सकती हूँ। अब हम लोग एकेडमिक्स धीरे धीरे एंटर कर सकते हैं। अब हमको वंदना मैम की एंट्री की ज़रूरत है कि हम लोग अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब बातें भी कर सकते हैं करके। तो वरना मैं इन सब के इसमें पढ़ नहीं रही थी कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ये ABCD 1 2 3 4 मुझे नहीं चाहिए करके। तो अब मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एंड देन आई हैड अ OT का एक होम प्लान भी था मेरे पास। तो उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे कि उसमें पिक में प्रणव वाज फोल्डिंग द यू नो वो एक मैट्रेस को फोल्ड कर रहा है, उसमें हमने वो डाले हैं। तो अब इस प्रेजेंटेशन में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि क्या था एक्टिविटी। प्रणव हैड प्रॉब्लम, इसको रिस्ट फोल्ड करना नहीं आ रहा था, वो सब प्रॉब्लम था इसको। एंड देन वो हैवी ऑब्जेक्ट्स पकड़ना इसका वो था, क्या कहते हैं, दैट वाज द टारगेट कि उसको हाइपर एक्टिविटी डाउन करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट पकड़ना ज़रूरी था। उसका हिटिंग कंट्रोल करने के लिए उसके हैंड्स को कुछ ज़रूरी एक्टिविटीज़ ज़रूरत थे। तो इस वजह से ये बच्चा ऐसे मैट्रेस को फोल्ड करेगा, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ये दोनों ऐसे, इनके पुराने पजल्स निकाले थे मैंने, एकदम पुराने पजल्स निकाले थे। तो दे वर वेरी हैप्पी डूइंग ऑल दिस थिंग्स एट होम। तो इसके बाद धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुल गया था तो वी वर गोइंग आउटसाइड भी हम लोग जा रहे थे, पार्क भी जा रहे थे। एक मेरा टारगेट था कि प्रणव हैड दिस एलोपिंग हैबिट, रनिंग हैबिट, ये भाग गया था मेरी सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में। तो ये सारे इश्यूज में टच किए बगैर कोई सॉलिड कॉन्सेप्ट एंटर कहीं कर नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि यू नो आप खुद अपने बच्चों के साथ जी नहीं पा रहे हो, आप एक 10-15 मिनट आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, एंड अब सडनली बुक्स और वो लेके या फिर कोई और बड़ा बड़ा टारगेट लेके हम लोग बैठेंगे, नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो मुझे इम्पोर्टेंट था कि मेरे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी इम्पोर्टेंट था, ये लाइफ को अच्छे से जीना भी इम्पोर्टेंट था।
बच्चे का उसको प्रणव और सच हैप्पी चाइल्ड की इसको पहले वाले इसके स्कूल में बताते थे मैम इसको थोड़ा सा वापस मारना सिखाइए ये क्योंकि सभी बच्चों से मार खाता है करके। तो ऐसा बच्चा इतना मार रहा है सब लोगों को। मी एंड माय हस्बैंड गॉट हर्ट सो मच कि हमको काफ़ी बार हमको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे पोजीशन में आ गया था बच्चा। क्यों हुआ, क्या हुआ, इन सब का मुझे रिसर्च करना था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको हॉस्टल भेज दूँ, मैं क्या करूँ करके। तो इन सब चीज़ों का सवाल मुझे धीरे धीरे करके ये होम स्कूलिंग की वजह से मिला। अभी तक मैंने कोई एकेडमिक्स सॉलिड एकेडमिक्स करके अभी तक नहीं करवाया। अब धीरे धीरे करके कंप्यूटर स्किल्स सिखा रही हूँ। कर रहा है वो 4 लाइन टाइप कर रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट। एंड धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग, मैंने पहले भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में बोला है, प्लीज़ ट्राई टू गो स्लोली बट डोंट स्टैंड स्टिल प्लीज़ मत कीजिएगा। कुछ भी कीजिए, ट्राई टू गो स्लोली, इट्स ओके। कंपेयर नहीं करना है। मेरे बच्चों को मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ना मुझे किसी मदर के साथ कंपीट करना है। मुझे आई एम कॉम्पिटिटिव फॉर माई सेल्फ। मुझे हंसना है, मुझे अच्छे से मैं जैसे थी पहले वैसे रहना है। मेरे बच्चों को भी जैसे वो पहले थे हंसते खेलते वैसे रहना है। तो उसका मैंने रनिंग हैबिट ऐसे छुड़ाया कि आई स्पेंड अराउंड 1 आवर इन अ फ्री पार्क, वहाँ इसको भागने के लिए छोड़ देती थी। आई मेड सोशल स्टोरीज फॉर दैट। तो काफ़ी कुछ किया हम लोगों ने इन सब के बीच में। लेकिन एक टाइम में एक टारगेट, एक दिन में एक एडीएल। अगर वो एडीएल टाइम कंज्यूमिंग है तो हमारा एकेडमिक्स थोड़ा सा पीछे कर लेती थी। नंबर काउंटिंग या फिर जो भी राइटिंग वर्क है उसको मैं थोड़ा टाइम कम देती थी। दैट्स ओके फॉर मी। क्योंकि उसने अब भी मेरे बच्चों ने, शशांक मैं बताती हूँ, जिस टाइम में मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट किया ही वॉज नॉट एबल टू, जैसे उसकी सेंसरी इश्यूज की वजह से समझ लो क्या था पता नहीं, बट ही वॉज नॉट एबल टू वेयर हिज शॉर्ट्स प्रॉपरली। एक ही दोनों लेग एक ही साइड में डाल देना, न जाने क्या क्या चीज़ें वो करता था। अब वो उल्टा सीधा सब कुछ करता है। वी फोल्ड द क्लोथ्स टुगेदर। तो हम सब चीज़ साथ में करते हैं। प्रणव भी अब सब कुछ सीख गया है। प्रणव टेक्स केयर ऑफ शशांक नाउ मेनी अ टाइम्स। अब हम लोग पार्क जाते हैं, ही टेक्स केयर दैट शशांक किसी को टकरा नहीं रहा है। गाड़ी आ रही है तो शशांक को खींच लेता है, कोई सामने से आ रहा है तो शशांक को खींच लेता है। अब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए बताइए? व्हाट एल्स आई वांट अभी एज अ मदर। तो ये सब टारगेट्स हमने अचीव कर लिए। तो होम स्कूलिंग जैसे जो भी मिथ्स वंदना मैम ने शेयर की, वो मिथ्स के थ्रू मैं भी गो थ्रू कर चुकी हूँ कि भाई बुक्स लेके बैठना है। होम स्कूलिंग इट्स नॉट दैट। होम स्कूलिंग इज बॉन्डिंग विथ योर चाइल्ड। होम स्कूलिंग मैं बताती हूँ कि कन्नड़ा में एक सेइंग है, आई एम अ कन्नडिगा, लेट मी टॉक अ लाइन कन्नड़ा, आई विल फील गुड। कन्नड़ा में एक सेइंग है कि ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ and ಅಮ್ಮನೇ ಮೊದಲ ಗುರು. That means home is your first school and mother is your first teacher. तो वो मैंने सीखा। मेरी बहुत, मैं छोटे में सब लोग पूछते थे कि क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वो ख्वाहिश भी पूरा हो गया मेरा होम स्कूलिंग की थ्रू। अच्छा खासा 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों बच्चों के बीच में वो हो गया। फैमिली का एक बॉन्डिंग हो गया। घर में रहते रहते फादर को भी छोटा छोटा रेस्पॉन्सिबिलिटी देने लगी। पहले वो कुछ भी नहीं करते थे, वो ना बॉल कैच कराना करते थे ना कुछ करते थे, वो और अपना काम करते थे। अब हमने धीरे धीरे ग्रुप गेम में उनको इन्वॉल्व किया। उनको भी बताया कि आप 20 मिनट्स बैठो फिर आप चले जाओ करके। उनको भी एक टाइम सेट किया मैंने। तो इस तरह से एक फैमिली बॉन्डिंग बन गया। बच्चों को भी मेरे ऊपर एक ट्रस्ट आया कि भाई ये हमेशा एक डिमांड मोड में नहीं रहती है। दिस लेडी इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। तो शी इज ऑल्सो गिविंग अस समथिंग। अगर हम लोग कुछ दे रहे हैं तो वो भी हमको वापस दे रही है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अस, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमको करके। तो ये 3 घंटे में मैं भले ही थोड़ा सा एक्टिविटीज को इधर उधर कर देती थी, लेकिन इसमें एक और चीज था, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें अगर प्रेयर का वीडियो है तो वो भी देख सकते हो। प्रेयर सॉन्ग्स भी मैंने ऐसे चूज किए जो इनके स्कूल में चलते थे वो, एंड जिसमें इनको ये है, प्रेयर इज द बेस फॉर योर किड्स। तो आप अगर घर में होम स्कूलिंग कर रहे हो, प्लीज डायरेक्टली आप कोई भी एक्टिविटी या उस पर मत जाओ, प्रेयर कराओ बच्चों को। दे फील गुड अबाउट दैट। वो एक बेस है।
दैट्स संस्कार करके जो बोलते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, वो एक है। एक्चुअली मेरे बच्चे इस तो ये आप देख रही हो, ये लोग हम डेली डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स प्ले करते थे। एंड अगर गणेश चतुर्थी है तो वी यूज टू प्ले गणपति सॉन्ग, सो दैट इनको पता होना चाहिए करके। तो जो भी दिन होते हैं उस दिन का हम लोग यूजुअली सॉन्ग्स प्ले करते थे। कन्नड़ा भी प्ले करती थी, सो दैट दे शुड नॉट फॉरगेट देयर मदर टंग। तो ऐसे होके इनको ये एक अच्छा वो मिलता था इसके थ्रू। इसके बाद ये लोग मेरी हर बात मानते थे इनको, क्योंकि प्रेयर इतना पसंद था कि ये दोनों आ जाते थे। तो ये था मेरा होम स्कूलिंग एक्सपीरियंस। थैंक टू वंदना मैम, क्योंकि इन्होंने जब अगर ये रिवील नहीं करते मेरे बच्चे को मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ करके, जो भी वट एवर द कॉमन ग्रुप वी वर इन, तो मैं नहीं इसके बारे में सोच पाती। तो थैंक्स टू वंदना मैम, थैंक्स टू सोनाली मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अगेन इट्स अ पुश फॉर मी कि करते रहो करके। Hema, can you talk about the challenges you had by doing homeschooling, and how did you overcome those? How do you do time management and planning? हाँ, उस टाइम इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस, दैट टाइम इट वाज अ लॉकडाउन टाइम। तो कोई मेड नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई किट किट पिट 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 कुछ भी नहीं था। तो ना बेल होती थी, ना कोई आता था, कोई अमेजोन नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, कोई नहीं। तो इसीलिए दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, ये जो रहता था। एंड देन वही था कि मैं बच्चों को सारे इसमें झाड़ू पोछा बर्तन सब में इन्वॉल्व करती थी। तो उनका वो टेक्टाइल सब कुछ उनका कवर अप हो जाता था, ओटी एक्टिविटीज़ कवर अप हो जाते थे उसमें। बाकी थोड़ा सा खाना बनाने का ये सब था। तो मैंने हस्बैंड से बात कर लिया था कि ये मैं नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, तो टिल वीकेंड यू वॉन्ट गेट एनी फैंसी आइटम्स। आप लग्जरी डिश मत एक्सपेक्ट करो मेरे से। हाँ, लेकिन सैटरडे संडे आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो एक ही आइटम बना है तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद वन आइटम ओनली करके। तो वरना तो आपको भी आना पड़ेगा हमारे स्कूल में मुझे हेल्प करने के लिए। तो दोनों में से एक चॉइस करो। तो ही वॉज सेटिस्फाइड विद दाल चावल, एंड सो इसीलिए हमारा ये अच्छा चला। ये मैंने एक हैप्पीनेस है कि आई हैंडल्ड ऑल दीज थिंग्स ऑल अलोन। तो ये एक था। हस्बैंड को भी ये अच्छा लगा, क्योंकि उनके मीटिंग में बच्चे परेशान करते थे, कोई टाइम टेबल के बगैर उनका वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम था, बच्चे परेशान करते थे। तो ये सब रुक गया हमारा। वो 3 घंटा अच्छा चलता था। 3 घंटे के बाद बच्चे को जो भी स्क्रीन टाइम था वो मिलता था, उनको जो चाहिए वो मिलता था। तो बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। तो खाना बनाना ये सब मैं I used to keep very easy items. I used to wake up by 5 o'clock, 4:30, 5 o'clock. अभी भी मैं वैसे ही उठती हूँ। मेरा जो भी एक्सरसाइजेस है, योगा है, ये सब कर लेती हूँ। एंड देन खाना बना के रख देती हूँ। यूजुअली मेजर चीज़ें मैं कवर अप कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब मेरा 10:30 से पहले बन जाता है। तो पोस्ट 10:30 इट इज़ ऑल फॉर किड्स बाय किड्स फॉर किड्स, व्हाटएवर उन्हीं का है सारा। ऐसा है हमारा। तो 1:30 तक हो जाता है सब कुछ वो करके। कई बार ऐसे होता था कि ये लोग उठते ही 9:30 10 o'clock थे। ये लोग काफ़ी सारे पिक्स में हैं, ये लोग बनियान और इसी में है, सीधा आ जाते थे। स्कूल स्टार्ट ही हो जाता था। एक बार प्रेयर के बाद इनको मैं लंच देती थी। लंच ब्रेक टाइम, मतलब उस टाइम आप लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लो करके। जब तक वो लोग ब्रेकफास्ट कर दें, मैं थोड़ा अपना सब्जी काट लिया, ऐसे सब करके। ये ऐसे होता था मेरा। And do you take any help from outside, like professional help or anything kind of that? हाँ, जिस टाइम स्टार्ट किया था आई हैड अ गुड होम प्लान। ओटी का होम प्लान था मेरे पास। तो उसके बाद मुझे लगा कि 2-3 महीने बाद आई फेल्ट कि थोड़ा सा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एंड आई एम गेटिंग टायर्ड टू कि इसमें शशांक के सेंसरी इश्यूज मुझे लग रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहे हैं फिर से करके। तो आई स्टार्टेड टेकिंग ओटी क्लासेस। एंड बाकी जो भी कुछ, जैसे प्रणव को अगर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, एकेडमिक्स में कुछ की ज़रूरत है, कई बार आई शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप की मुझे ये एडिशन की वर्कशीट्स की ज़रूरत है और विजुअल परसेप्शन की ज़रूरत है, तो वो हेल्प मिल जाते हैं। बाकी यू ऑल आर देयर फॉर दिस हेल्प।
तो अगर वर्कशीट्स भी लेती हूँ तो फिर उसको आई मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ माय किड्स, ये करती हूँ। सैटरडे संडेज आर यूजुअली फॉर द TLMs। हमारा अगर खाना बाहर से आता है तो आई प्रिपेयर द TLMs इन बिटवीन, वो करके। एंड देन अब ये भी था कि स्कूल फीस करके पैसा नहीं जा रहा है, तो आई स्टार्टेड बाइंग वन थिंग, जैसे क्रिएटिव्स की कोई भी एक थिंग है, तो मंथली वन गेम और वन थिंग फॉर द चाइल्ड, जो भी बच्चों को चाहिए वो लेती थी, सो दैट इससे इनको ना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ये सब देने में बहुत हेल्प होता है। ये था। प्रोफेशनल हेल्प एकेडमिक्स के लिए एज सच अभी तक नहीं लिया, लेकिन OT के लिए लेती हूँ। टाइम टू टाइम आई कीप टेकिंग फॉर द OT। Thank you, Hema. It was great, and I would like to share the pictures again so that everybody. Thank you so much. Thank you so much, Hema. And in the meantime, Vandana ma'am is sharing her presentation again. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि did you feel, of course लॉकडाउन में most of the people जिनको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही थी और जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अडेप्ट कर पा रहे थे, जिन्होंने इतनी कंसिस्टेंसी से कोशिश करी तो 2-3 महीने में सब बच्चों ने अडेप्ट कर लिया, पर कुछ बच्चे थे जो नहीं कर पाए, ऑनलाइन क्लासेस से अडेप्ट नहीं कर पाए, उनको डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आए, और उनके लिए होम स्कूलिंग वाज द लास्ट रिजॉर्ट और द बेस्ट रिजॉर्ट और द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जिसको आपने मतलब एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। आपने उस एडवर्सिटी को एक तरह से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, आपने एक नया एक्सपीरियंस अपने लिए भी पाया, अपने बच्चों के लिए भी पाया। बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज देयर वाज नो डोमेस्टिक हेल्प एंड द चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग आउट फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो क्या आपको ऐसा लगा कि इट इज ड्रेनिंग फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एंड you did need breaks, or you were able to structure it in such a way that आपके पास अपने लिए भी टाइम बच पा रहा था? luckily I was able to structure it in a way, वो उल्टा मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्प किया ये चीज़, क्योंकि उससे पहले आई वॉज स्टक अप। आई थिंक आई हैव कॉल्ड अप n नंबर ऑफ टाइम्स वंदना कि मैं इसको हॉस्टल में डाल दूँ, ये करूँ वो करूँ। एंड अगर जब लॉकडाउन भी हो गया तो भी मुझे ये फीलिंग आने लगा, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सारी मदर्स ये कर रही हैं वो कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ करके, वो भी थोड़ा सा फीलिंग आ रहा था। करने के लिए कुछ तो कर रही थी, बट उसको एक स्ट्रक्चर नहीं था, तो कभी कुछ करके कर लिया। तो I think there is some network issue. नहीं मैम, I can hear her. I think she's audible. हेमा बोलिए आप। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी जो था मेरे लिए उल्टा अच्छा साबित हुआ। This turned out to be an advantage for me and it made me more structured mom. मेरे घर का भी सारा टाइम टेबल सही हो गया, घर भी साफ सुथरा रहता था, क्योंकि बच्चे एक दिन एक बच्चा करके, अगर घर का झाड़ू पोछा लगा भी है तो भी बच्चों से भी एक बार ही थोड़ा बहुत करवा देती थी। They were enjoying all this. जैसे शशांक को ये सब स्प्रे करना सब कुछ अच्छा लग रहा था, कॉलिन स्प्रे ही वॉज, इसको स्मेल इश्यूज थे, वो सब इसके कवर अप हो रहे थे, तो मुझे एक तरीके से बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। दिस टर्न आउट टू मेक मी मोर स्ट्रक्चर्ड एंड उल्टा मेरा हेल्थ भी सारा इम्प्रूव हो गया इसकी वजह से। मुझे यही लगता है कि मैं दोनों बच्चों के साथ एक्टिवली काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ये एक्स्ट्रा जो बैचेस हैं, बीपी शुगर ये सब अभी तक टच नहीं किए लग रहा है मुझे। सो दिस इज हाउ मुझे एडवांटेज ही हुआ इसका जो भी था। थैंक यू हेमा। अच्छा, एक बात और बताओ, डू यू थिंक एट लाइक इफ द बॉयज आर ग्रोइंग अप, प्रणव इज 14 प्लस आई थिंक, यस, so do you think at any point you would like them to send to school or get some extra help for them? Yes, now I need extra help because I am not a professional as such, so I'm just a mother. I need to take professional help, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, क्योंकि अब वो कंप्यूटर्स अच्छा कर रहा है एंड देन
बाकी भी जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करने के लिए आई नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो मुझे चाहिए इंटरवेंशन, प्रोफेशनल इंटरवेंशन वी शुड टेक एक्चुअली। सारा हमारे सर पे लेके जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर। Okay. Thank you, Hema. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah, it means a lot. It means a lot Yes. because Yes. I'm also trying to understand things from a parent's as well as a professional's perspective. So I'm trying to see the pros and cons of each side, and each person's perspective is going to be different. सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। होम स्कूलिंग में भी हर पेरेंट का एक्सपीरियंस अलग होगा, स्कूलिंग में भी हर पेरेंट का एक्सपीरियंस अलग होगा, एंड हर प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस, हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होगा। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सो लेट्स हियर वंदना मैम स्टोरी नाउ, वंदना मैम Thank you. जर्नी ऑफ होम स्कूलिंग सक्षम। Yes. So, hello everyone again. अब मैं एक पेरेंट की तरह आपको बताती हूँ कि मेरी होम स्कूलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। I started in 2016, beginning of 2015, sorry, 2015 के beginning में I started my homeschooling journey, and क्यों किया, why I did it, because जिस टाइम पर मैंने होम स्कूलिंग किया उस टाइम पर आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड। मेरे दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे। एक आई एनरोल्ड हिम इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल। मैंने सक्षम को एनरोल किया था मेन स्ट्रीम स्कूल में, और वहाँ पर ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड, एंड देयर वर सम थिंग्स विच हैपेंड विच आई डिड नॉट लाइक। मुझे मतलब मेरा बच्चा काफ़ी कुछ कर रहा था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो उसे इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मैंने स्कूल से तो इसे निकाल लिया, बट मेरे अंदर एक ये फीलिंग थी कि क्या मेरा बच्चा बिना स्कूल के ही रह जाएगा, बिना लर्निंग के ही रह जाएगा, अगर ऐसे ही कोई भी इंक्लूड नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस टाइम मुझे ना ज़्यादा आइडिया नहीं था। I was working as an IT professional at that time. I had a very busy job that needed a lot of time. जो मेरी जॉब थी वो बहुत डिमांडिंग थी, सुबह से लेकर और आधी रात तक, और कभी कभी पूरी रात तक मुझे काम करना होता था। तो मैं सक्षम को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। अब वो स्कूल से जब रिजेक्ट हुआ, और तब मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि ऐसी पढ़ाई का और ऐसी जॉब से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है जो मेरे बच्चे को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ मैं। आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई चाइल्ड। वो जाता था, थेरेपिस्ट के लिए जाता था, और उस टाइम पर ज़्यादा 2014 की बात है जब स्कूल का ये हुआ था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अभी तो काफ़ी स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूजन भी होता है, और स्कूल्स में स्पेशल नीड्स के लिए बहुत सारी प्रोविजंस भी होते हैं। एट दैट टाइम देयर वर not that much of provisions, and the mother inside me was questioning myself that what I have done for my child. I have done except spending money and except sending him from one place to another. I have not done anything more than that. तो वो उस फीलिंग के साथ I went to an empowerment program which was done by a mother, and I got myself empowered, and वहाँ से मुझे समझ में आया कि कैसे करना होता है टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग कैसे करनी होती है, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। तो वहाँ से जब मैं वापस आई, इट वॉज आउट ऑफ टाउन, इट वॉज इन सम अदर प्लेस, तो आई लेफ्ट मैं जहाँ पर रहते थे यहाँ से हम रिलोकेट हो गए 6 months के लिए। वी स्पेंट सम टाइम देयर, एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक एन एम्पावर्ड, बोल सकती हूँ मैं कि आई न्यू, मेरे को पता था कि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। वो मैंने मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, बिलीव इन योर चाइल्ड एंड योर सेल्फ, तो वो बिलीव मेरे अंदर आ चुका था। एंड वी स्टार्टेड होम स्कूलिंग इन May 2015।
and one of my friend, मेरी अकेली जर्नी नहीं है, my friend नीति, she joined me with her son Ramit. तो 15 दिन मैंने अकेले किया होम स्कूल एंड देन नीति सेड कि मैं एक दिन ना तुम्हारा होम स्कूल देखने आना चाहती हूँ. बोला मोस्ट वेलकम. वो आए और उन्होंने हमारा पूरा डे का शेड्यूल देखा एंड शी सेड फ्रॉम टुमारो आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग यू. और वो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई जो 3.5 ईयर्स तक चलती रही और हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा. एक मदर ने दूसरी मदर से, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से. हमारा टाइम जो रहता था होम स्कूलिंग का, रीजन बिहाइंड वाज नॉट मेनी रिसोर्सेज वर अवेलेबल एट दैट टाइम एंड वी वांटेड. और हमारे बच्चे जहाँ पर भी जाते थे वो बहुत दूर था, मेरे घर से बहुत दूर था जहाँ वो जाता था, तो ट्रैवलिंग टाइम वाज मोर एंड लर्निंग वाज हैम्परिंग ड्यू टू द ट्रैवलिंग टाइम. तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण मैंने होम स्कूलिंग किया एंड द मदर इनसाइड मी वाज फोर्सिंग मी टू डू समथिंग फॉर माय चाइल्ड ऑन माय ओन. ये कुछ रीजंस थे. देन व्हेन वी स्टार्टेड, आई विल टॉक अबाउट द शेड्यूल. शेड्यूल ऐसा होता था कि हम सुबह 10 बजे स्टार्ट होता था हमारा होम स्कूल. प्रेयर से स्टार्ट होता था. एवरी डे स्टार्टेड विद अ प्रेयर ऑफ 15 मिनट्स. उसमें हम प्रेयर करते थे, शांति मंत्र वगैरह सब करते थे ताकि बच्चे बिल्कुल काम डाउन हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं. आफ्टर प्रेयर वी हैड 45 मिनट्स ऑफ योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज. ओनली योगा एंड फिजिकल, ओटी वाली जो ग्रॉस मोटर की जो स्किल्स होती हैं वो. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में बच्चे योगा कर रहे हैं. सो हमारा डे स्टार्ट ही योगा से होता था एंड इट टुक अबाउट, हमें बहुत टाइम लगता था. प्रेयर योगा मोर देन 1 आवर पूरा लग जाता था प्रेयर योगा एंड फिजिकल एक्टिविटीज करने में. लेकिन जब बच्चे योगा और फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते थे देन दे वर सेटल्ड. तब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि अब ये बैठेंगे या नहीं बैठेंगे. एंड आफ्टर योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज वी डिड अ फ्रूट ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स जिसमें वो अपना फ्रूट खुद से पील करना और कट करते थे. जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होती थी हम हेल्प करते थे. तो इट वाज लाइक अ ब्रेक एंड इट वाज आल्सो लाइक एन लर्निंग. और उस टाइम पे हम मदर्स कॉफ़ी पीते थे जिसे मैं आज तक मिस करती हूँ. बहुत दिन हो गए वो कॉफ़ी पिए हुए तो आज तक वो कॉफ़ी टाइम में मिस करती हूँ. एंड नीति ऑल्सो मिस दैट कॉफ़ी टाइम जिसमें हम दोनों कॉफ़ी पीते थे बड़े आराम से 15 मिनट रिलैक्स होके और बच्चे अपना एप्पल बनाना जो भी है वो खाते थे. आफ्टर दैट वी यूज टू डू फाइन मोटर एक्टिविटीज़. प्री रिक्विजिट्स जो होती हैं राइटिंग के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों की राइटिंग के काफ़ी इश्यूज थे तो हमने स्पेसिफिकली 15 to 20 मिनट्स का टाइम रखा था प्री राइटिंग और प्री राइटिंग फाइन मोटर के लिए. और उसके बाद हम एकेडमिक्स वाला काम करते थे. एकेडमिक्स भी हमने ऐसे स्टार्ट किया क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो हमें इतना ज़्यादा हम दोनों बच्चे जो थे वो बोलते नहीं थे, नॉन वर्बल, ऑलमोस्ट नॉन वर्बल. वरना मैम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग. डू यू हैव अ फ्लो? अभी आपका कोई प्लानर है जो आप शेयर कर सकते हो? जो आप बोल रहे हो मतलब उसका विजुअल सपोर्ट भी होता तो अमेजिंग हो जाएगा. नहीं है तो नो वरीज. हाँ कहीं पर मैं बाद में शेयर कर दूंगी. आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. एक बोर्ड पर एक व्हाइट बोर्ड था. यू कैन सी व्हाइट बोर्ड्स इन माय रूम आल्सो. देयर आर मेनी व्हाइट बोर्ड्स. इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड था जिस पर पूरा शेड्यूल जो है वो रमित मेरे घर आता था 10 बजे सुबह. उससे आने से पहले पूरा शेड्यूल मैं लिख कर रखती थी. रमित और नीति के आने से पहले दे यूज्ड टू कम एट 10. उससे पहले मेरा पूरा क्लासरूम सेट होता था, मेरा शेड्यूल रेडी होता था, लिखा हुआ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं. 10 to पूरा टाइम के हिसाब से कितने कितने मिनट क्या क्या करना है वो सब लिखा हुआ रहता था. और जब हमारा ये फाइन मोटर हो गया उसके बाद हम एकेडमिक्स कराते थे. और एकेडमिक्स हमने बिल्कुल ही नर्सरी लेवल से स्टार्ट किया था बच्चों के साथ because we wanted to make sure that foundations are very strong. फाउंडेशन स्किल्स पर हमने बहुत अच्छे से काम, मतलब हम दोनों का ये था, नीति और मेरा, कि हमें फाउंडेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आगे की लर्निंग इजी हो जाए.
तो सक्षम इज वेरी गुड इन लैंग्वेज, इन रीडिंग उसकी साइट रीडिंग, उसकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी है. बट एंड रमित इज गुड इन स्पेलिंग्स एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स में ही इज अ प्रो. और सक्षम हैड डिफिकल्टी विद मैथमेटिक्स. तो हमने एकेडमिक्स को इस हिसाब से किया, कस्टमाइज कर दिया दोनों के लिए, ताकि जिस टाइम पर जो जिसकी स्ट्रेंथ है हम उसकी स्ट्रेंथ पर काम करें और जो जिसकी वीकनेस है हम उसके गैप्स पूरा करने की कोशिश करें. तो बाकी सब तो हमारा सेम रहता था. मैथ्स का जो था वो हम अलग अलग दोनों को अलग अलग कस्टमाइज्ड कराते थे. और कम्युनिकेशन के लिए लकीली वी फाउंड आवाज एट दैट टाइम एंड वी यूज टू डू आवाज. अब पहले हम पेपर पर करते थे, आरपीएम मेथड यूज करते थे, जिसमें हम चिट्स पर लिख देते थे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देते थे. क्योंकि नॉन वर्बल थे ना दोनों बच्चे, तो हमें पता नहीं चलता था कि क्या आता है क्या नहीं आता है. इस फिर हमने आवाज इंट्रोड्यूस कर दिया और उससे हमें काफी हेल्प मिलती. जब हमारा ये एकेडमिक्स पार्ट खत्म हो जाता था अराउंड 1:30 या 1:30 पे, देन वी हैड अ ब्रेक, गुड ब्रेक ऑफ 1 hour और मोर, 1.30 मतलब 1.5 घंटे का 1.5 hour ब्रेक. एंड एट दैट टाइम हम सब रिलैक्स करते थे चारों, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, बैक टू बैक हम काम कर रहे थे. तो अब हम जब लंच ब्रेक लेते थे, पहले हम बच्चों को खाना खिला देते थे, उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर खाना खाते थे, गॉसिप करते थे, टीवी देखते थे. वो भी अभी मैं बहुत मिस करती हूँ, वो गॉसिप टाइम. तो एक सवा घंटे का अच्छा ब्रेक बच्चों को भी मिल जाता था, जिसमें उनको ये रहता था कि ये सारा टाइम काम नहीं कराते रहते हैं. एंड देन वी अगेन स्टार्टेड 2:30 के करीब हम दोबारा स्टार्ट करते थे. एंड नाउ आवर शेड्यूल वॉज डिफरेंट देन द मॉर्निंग शेड्यूल. अब हमारा जो मेन फोकस था वो था लाइफ स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड फिजिकल. तो 2:30 to 4 तो हम जैसे कि लाइफ स्किल्स में, जिसमें हम लाइफ स्किल्स पे जैसे कि हमने एक रैक में सारा ग्रोसरी का सामान लगाया हुआ था एंड वी यूज टू टेल देम कि अभी सॉल्ट लेकर आओ, अभी ये लेकर आओ. फिर हमने शुरू किया कि अब हमने इनको लिस्ट बनाकर देनी शुरू कर दी और एक बड़ा बैग दे दिया, इस बैग में ये जो लिखा हुआ है सारा सामान वो डालकर लेकर आना है. इस तरह की लाइफ स्किल्स पे काम करना शुरू किया. और बहुत दोनों बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी थी, तो रिटन इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दोनों को फॉलो करते थे. तो जहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, रिटन में कुछ काम कर दिया और वो कुछ काम को करना. बैग लेकर आना है तो गो गेट अ बैग एंड देन वो लिस्ट, रीड द लिस्ट, गेट दीज आइटम्स, वो पढ़ के अपना करते थे. तो लाइफ स्किल्स पर हम काम करते थे आफ्टर 2:30 एंड लैंग्वेज स्किल्स पर काम करते थे, डिफरेंट लेजर स्किल्स पर. कभी हमने बैठ के पजल्स खेल लिया, कभी हमने स्नेक्स एंड लेडर्स खेल लिया. एंड आफ्टर दैट 4 o'clock का टाइम था हमारा स्टार्टिंग विद द फिजिकल थिंग. उसमें ड्राइवर वॉज देयर, वी हैड हेल्प. तो रमित का ड्राइवर आता था साथ में, वी यूज टू टेक हिज हेल्प एंड बोथ द चिल्ड्रन दे यूज टू गो डाउनस्टेयर्स एंड दे यूज टू राइड बाइसिकल्स. एंड फिर हमने एक हमारे सोसाइटी में छोटे बच्चों की क्लास लेते थे एक सर स्केटिंग की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों को भी स्केटिंग आप थोड़ी देर करा दो. तो जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर एक सर आते थे, वो 40 मिनट के लिए 30 मिनट उनको स्केटिंग कराते थे, फिर हम इनको साइकिल चलवाते थे. एंड ऑल्सो एवरी डे वी वेंट फॉर अ वॉक ऑल टुगेदर, 4 of us. और जब सर्दियां होती थी तो हम धूप में वॉक करने जाते थे, सन में वॉक करने जाते थे. एंड वी केप्ट टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, दीज आर द ट्रीज, दिस इज अ बैंक, दिस इज अ, जो रास्ते में आता था हम उसकी बात करते थे. स्कूल बस आ रही है उसकी बात करते थे. तो लैंग्वेज पर भी हम काम करते थे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे भी काम करते थे, वॉक भी करते थे, ताकि जो फिजिकल है उस पर भी हम अच्छे से काम कर पाए. तो हमने पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच रखा था, जिसमें हम ट्राई करते थे कि सारी चीजें कवर हो जाए, तब चीजें कवर हो जाए. आई विल शो यू.
Here. If you can see here, they used to go downstairs every day. ये pictures तो किसी किसी दिन की, every day we used to go and they used to have a quality time together, जहाँ पर उन्हें एक friend भी मिल रहा है एक दूसरे में. They are riding bicycle and they are playing with the driver. Then they are on the slides and here they are going with walk. Both of them, Saksham and Ramit, are with Niti and they are going for a walk. We are going for a walk. तो हम ऐसे अपना पूरा डे मैनेज करते थे. 5 o'clock हमारा होम स्कूलिंग जो था, जिसे हम लर्निंग बडीज, हमारे होम स्कूल का नाम था लर्निंग बडीज, और लर्निंग बडीज का टाइम एंड होता था 5 बजे, कभी कभी 5:30 भी हो जाता था. उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि हमने पूरा दिन सारी चीज़ों पर काम कर लिया. नाउ इट इज़ रिलैक्स टाइम. मी एंड सक्षम रिलैक्स करते थे, खाना वाना बनाया और उसका अपना कुछ मी टाइम मेरा, कुछ सक्षम का. तो इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है वो मैनेज हो जाता था. अब अगर बात करें कि क्यों किया, ये तो मैंने आपको बता दिया. कैसे किया ये भी मैंने आपको बता दिया. चैलेंजेस क्या आए? चैलेंजेस आते थे हमारे लिए. जो चैलेंजेस थे, टाइम मैनेजमेंट, वी वर गुड. टाइम मैनेजमेंट में हमें ज़्यादा चैलेंज नहीं आया. मे बी माई प्रोफेशनल एंड माइन एंड नीतीज बोथ प्रोफेशनल करियर हेल्प दियर. तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में हमें ज़्यादा इशू नहीं आया. हमें इशू आते थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिली इश्यूज थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो कि हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करते थे. तो उसके लिए मेडिटेशन वगैरह शुरू किया. वी वर टू टुगेदर, सो वी हैड अ बडी इन अस. हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना. एंड देन वो थोड़ा सा बीच में ऐसा भी टाइम आया जब हम बिल्कुल ही इतने इमोशनली ड्रेन्ड हो गए कि कुछ भी नहीं करना है, इस तरह की सिचुएशन भी आ गई. बट वी केप्ट पुशिंग ईच अदर. एक दूसरे को हम पुश करते रहे. दूसरा चैलेंज क्या आया कि जब हमने स्टार्ट किया था, सक्षम वॉज 6 एंड रमित एंड सक्षम हैड अ 5 years गैप. रमित वॉज 11 एट दैट टाइम. तो जैसे जैसे हमने 3.5 years वी स्पेंट इन होम स्कूलिंग, तो बच्चे बड़े होने लगे, इनकी ना नीड्स चेंज होने लगी. वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी हमें एक्सटर्नल हेल्प की. सेंसरी नीड्स और जो इनकी एडोलेसेंस की नीड्स थे. तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि वी यूज्ड टू गो फॉर ओटी थेरेपी थ्राइस अ वीक, 3 days a week. तो जो हमारा 2.5 से 4 का टाइम था ना, उसके बीच में हम बीच में हम 2 days a week जाते थे हम ओटी के लिए थापा सर के पास. उस टाइम पर दोनों जाते थे. हमारी दोनों की थेरेपी साइमल्टेनियसली होती थी. रिक्वेस्ट किया था हमने कि हमें दोनों को एक ही टाइम पे थेरेपी मिल जाए. वहाँ पर जाते थे. और जैसे जैसे बड़े होने लगे तो रमित एंड सक्षम हैड 5 years गैप. तो बिहेवियर एंड एडोलेसेंस इश्यूज आने लगे. एंड वन वॉज गोइंग थ्रू द एडोलेसेंस इश्यूज वाइल द अदर वन वॉज यंग. तो हम दोनों को एक सा काम नहीं कराना पॉसिबल हो रहा था. तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज आने लगे. एंड वन थिंग व्हाट आई नोटिस दैट जब सक्षम थोड़ा सा बड़ा हो गया, अराउंड 10 years, तो देन ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर किड्स. जब पार्क में जाते थे तो दूसरे बच्चों को देखना और दूसरे बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने की कोशिश करना. रमित तो था उसके साथ, बट वो एक ग्रुप नहीं था उसके पास. तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि थोड़ा थोड़ा जो है वो सोशल होने की कोशिश कर रहा है, जो वो पहले नहीं करता था. एंड ही नीड्स अ सोशल इन्वायरमेंट. ये थोड़े चैलेंजेस आए थे जब हम होम स्कूलिंग करते थे. और बाकी तो इट वॉज वेरी एडवेंचरस जर्नी, आई वुड से. वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम बोथ द किड्स. हमने बहुत सीखा. एंड नाउ आई एम नॉट होम स्कूलिंग
एंड फ्यू पीपल आस्क मी कि अभी तो पहले तो आप होम स्कूलिंग कर रहे थे, तो आपने क्यों कंटिन्यू नहीं किया, अब क्यों होम स्कूलिंग छोड़ दिया है? अभी तो मैं सनराइज लर्निंग में जाती हूँ, तो आई एम देयर फ्रॉम 9 to 3. So most of the time is spent in sunrise learning, and I am also doing sessions with the kids and empowerment sessions with the parents also. So most of the time goes there. बट अभी मैं होम स्कूलिंग नहीं कर रही हूँ, और आप सभी को लोग पूछते भी हैं कि अभी तो आप होम स्कूलिंग नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, when he was 10 years old, then I realized that he is seeking a social group which we are not able to provide in two kids. तो एक तो उसे सोशल ग्रुप की जरूरत थी, दूसरा था कि साढ़े अब दोनों बच्चे जो थे उनके गोल्स अलग अलग हो गए थे, उनके रास्ते थोड़े अलग अलग जाने लगे थे. 5 years का गैप था, तो सक्षम हैड सम अदर गोल्स एज पर हिज एज, एंड रमित के कुछ नए गोल्स ऐड हो गए थे जो पहले नहीं थे. तो थोड़े से हमारे गोल्स अलग होने लगे थे, तो भी थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था बीच में. वी ट्राइड कि हम और करें, और फिर कुछ कुछ डिस्टेंस के इश्यूज हो गए, हमने घर चेंज कर लिया था, एंड देयर वर सम इश्यूज, कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज भी आ गए थे. और मेनली मुझे ये था कि जो मैंने सीखा है, मुझे मेरे अंदर मेरे अंदर जो है ना, जैसे मेरी माँ, मेरे अंदर की मदर ने बोला कि अभी बच्चे के साथ काम करना है, तुम होम स्कूलिंग कर लो, तो मेरे अंदर ऐसी एक फीलिंग आ रही थी कि जो मैंने सीखा है, आई शुड शेयर इट विद अदर्स. जो मेरे बच्चे ने सीखा है वो अगर मैं और बच्चों को सिखा पाऊँ, मेरे पास कंप्यूटर की नॉलेज है वो मैं दूसरे बच्चों को सिखा पाऊँ. आवाज़ हम ही करते थे उस टाइम पर, ज़्यादा पेरेंट्स नहीं करते थे आवाज़, वो मैं दूसरे बच्चे को सिखा पाऊँ. तो फिर हमने धीरे धीरे अपने होम स्कूलिंग को कम करना शुरू किया, और अपने सोशल स्कूल जो सनराइज लर्निंग का जो स्कूल है वहाँ पर जाना शुरू किया. इनिशियली इट वाज 1 hour, देन वी इंक्रीज इट टू 2 hours, फिर हम 9 से 1 जाते थे, अब तो वी आर देयर फॉर 9 to 3. तो रीज़न यही था कि बच्चा मेरा सोशल ग्रुप सीख कर रहा था, और उसे अपने एक अपने लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और हम केवल 4 लोग थे, तो वो प्लेटफॉर्म हम बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, वो सोशल हम बच्चों को नहीं दे पा रहे थे. रमित ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू अनदर स्कूल इन they are in South Delhi though, so he started going to another school in South Delhi. और रीज़न एक मेन रीज़न था सोशल, जो कि हम अपने बच्चों को देना चाह रहे थे, और दूसरा था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमें उन्हें जो वोकेशनल स्किल्स सिखानी है वो सब हम घर पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम घर पर अरेंज नहीं कर सकते हैं. तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण वी स्टॉप होम स्कूलिंग. अभी ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट वर्किंग विद हिम, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है. आई ट्राई माई सेल्फ कि हम 1.5 से 2 घंटा अराउंड 2 hours, नहीं तो 1 hour every day we do. This is mine and Saksham time, and again I am following the same approach which I followed in homeschooling, जहाँ मुझे gaps लगते हैं holistic development में. I work on those skills. So it is not that I have completely left it, but yes, I am partially homeschooling him, and he is going to Sunrise Learning. But yes, it was a good learning, and it will be always with me. Whatever I have learned in my homeschooling journey, it will be always with me, and whenever, wherever needed. That nobody knows corona was there, nobody knew it. So in any case, if any time I have to work with him, he is ready to work with me, and I am ready to work with him 24/7. So that is what I learned in my homeschooling journey. I think that's all about. Okay, so wonderful. Thank you, Vanda ma'am, and thank you, Hema, for sharing
योर एक्सक्लूसिव जर्नीज, होम स्कूलिंग जर्नीज जो कि एक्सक्लूसिव हैं, आपकी अलग है, आपकी अलग है। और हम सबकी कहीं ना कहीं छोटी छोटी होम स्कूलिंग जर्नीज हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस सबके हैं, जब सबने अपने घर में अपने बच्चे के साथ काम किया है विदाउट any other school system that the child is going to, and that's wonderful. That gives us a new perspective.